मन किया एक्टिंग का, या पहले से ही कर रहे हो आप? या नहीं नहीं, एक्टिंग तो लाइक लिटरली एक्टिंग स्टार्टेड आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर उससे लॉकडाउन? पहले तक आई वॉज अ रैम्प मॉडल। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई मॉडलिंग। इंडियन जो टीवी सीरियल्स होते हैं तो उससे कितना डिफरेंस लगा आपको फिल्म एंड टेलीविजन का? मूवी एंड आई थिंक सीरियल्स आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि जब मैं वो इट्स वेरी फनी, आई लव वॉचिंग महाभारत। महाभारत? Yeah. डीडी नेशनल? No, no, not that one. So you were a part of Crime Patrol, Emotional अत्याचार also, अदालत? Initially, yes. हाँ, प्यार तूने क्या किया, इश्क में मर जावा. So according to you, which one is your best one? Like initially when I did फैशन का एक वो रहता है ना, क्रेज रहता है, स्पेशली इन गर्ल्स, ऑफ कोर्स इन गर्ल्स ओनली, तो नहीं बॉयज में भी बॉयज होता में भी है। होता है. When are you getting married? You tell yours. Married? You don't believe in me? If I get a right person, I would like to stay together. बंगाल में सिर्फ दो ही चीज फेमस है. दूसरे नंबर पे जो आती है वो है आपका हावड़ा ब्रिज, और पहले नंबर पे जो आती है वो है आज की हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट रिया भट्टाचार्य जी. हाय रिया, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम ग्रेट टू. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I'm funny. It was very nice. द इंट्रो वाज वेरी नाइस. बहुत मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर कि क्या लिखा है वो मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन जो भी लगा अच्छा लगा. मुझे भी it was funny. तो कैसा लग रहा है, लाइक हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू? I love Mumbai. Mumbai is like Mumbai is home now. Yeah. इट्स अ होम. Yeah, yeah. तो I love कितना टाइम Mumbai. हुआ आपको मुंबई में? It's almost 10 years. 10 years Yeah, in almost Mumbai. 10 years, yeah. सो हाउ डिड यू स्टार्टेड एक्टिंग? कैसे मन किया एक्टिंग का, या पहले से ही कर रहे हो आप? या नहीं नहीं, एक्टिंग तो लाइक लिटरली एक्टिंग स्टार्टेड आफ्टर लॉकडाउन। आफ्टर उससे लॉकडाउन? पहले तक आई वॉज अ रैम्प मॉडल। आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई मॉडलिंग एंड आई वॉन्टेड टू वर्क लाइक 20 days a month and 10 days, 7 days I want to chill. That was before lockdown. I was very sure about my this thing कि हाँ यार 30 days I don't want to work. I want to chill for some days, and that's how my life was going on, like doing modeling. And I started my modeling also from Miss India East when I was in college in Calcutta. So yeah, I was a ramp model and doing modeling, TVCs and all, chill life. ऐसा मतलब ये वाला नहीं था कि सुबह उठ के I have to go to the set and then दिन भर we are doing and then coming back at night from set to home. ऐसा वाला तो started after lockdown 2020. After lockdown. So first serial you did, that was Agnivayu Agnivayu. on Ishara. I remember first lockdown happened, then lockdown के बाद there was a 2020 में I guess there is a gap and then second lockdown happened. So in that gap my first serial started, Agnivayu. So how was the experience? के मतलब क्योंकि वो मॉडलिंग से तो बिल्कुल अलग है, like मॉडलिंग में you have to just give some time. Before that ना I did I was giving auditions, right? Like ऐसे ही, ठीक है, आ रहा है तो audition दे रही हूँ. There was no struggle कि ये करना है, ये जाके देना है. This thing was never there. So I did Hello Mini season 1. Okay. There was if you are aware of the web series, it was on MX. MX. Hello Mini. So I've heard it. हाँ, so that was like जब पहली बार कॉल आया था ना, I got it. Like I really can act. That before that I was never confident about it, and after that, after Hello Mini happened, I started taking, workshops. I have taken workshop from Neeraj Kabi sir, Alok Ulfat sir, Jogi Malang sir, and then थोड़ा सा confident आया कि I can do it. But when actually started doing on floor, it was tough. It was different. It was difficult. But then it was a different kind of experience where I started learning new things, and that's how I started liking the journey, because I was learning new things, dialogues करना and all, दिन भर कुछ ना कुछ करना. So yeah, I started liking it. So you did a film also in Bengal. Yeah. You did an item song. तो Yeah. क्या लगता है सीरियल्स जैसे इंडियन जो टीवी सीरियल्स होते हैं तो उससे कितना डिफरेंस लगा आपको फिल्म एंड टेलीविजन का? पहली बात
बंगाल और बॉम्बे दोनों जगह पे बिल्कुल अलग होगा। थोड़ा क्वाइट अलग है, काम Okay. करना अलग है। और मूवी एंड आई थिंक सीरियल्स आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि जब मैं वो सॉन्ग के लिए यहाँ से गई थी, वो 2-3 दिन में हम लोग वो सॉन्ग ख़त्म किए, बट बिफोर दैट आई वाज प्रैक्टिसिंग लाइक काफ़ी दिनों तक, 2 हफ्ता तक पूरा रिहर्सल किया एंड ऑल, वो सब था। बट था मतलब द स्केड्यूल वाज देयर कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एंड आई वाज डूइंग अ डिफरेंट थिंग, अ सॉन्ग, अ डांस, so that was different. But I think the schedule is something, टीवी में इज लाइक नेवर एंडिंग, यू डोंट नो, ये चलता ही रहेगा, वही अगेन सुबह जाना रात को पर वापस आना, एंड इट विल कंटिन्यू। बट मूवी इज समथिंग यू नो कि यहाँ तक खत्म हो जाएगा और इतना है, यही करना है। टीवी में यू डोंट नो, कभी भी स्क्रिप्ट बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सो दैट डेफिनेटली दैट वाज द डिफरेंस, बट देन अगेन बंगाल और मुंबई दोनों में काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। सो विच इज़ योर फेवरेट टीवी सीरियल विच यू थिंक के यार मतलब ये इसमें मुझे काम करना है, या दिस सीरियल इवन यू लाइक टू वॉच, ऐसा कोई है एनी स्पेसिफिक सीरियल में अभी जो चल रहा है काम करना है? ऐसे तो ऐसे कैसे बोलो, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड सीरीज। या फिर अभी जो भी नहीं चल रहा, अभी मतलब जो आ चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े अच्छे लगते हैं जो पहले आता था, सो ऐसा कोई सीरियल विच यू लव्ड वाचिंग? आई नो लव वाचिंग, इट्स वेरी फनी, आई लव वाचिंग महाभारत। महाभारत, Yeah. डीडी नेशनल, No, not that one. The next one. स्टार प्लस, Star Plus one, जो कृष्णा, सौरभ जहाँ yeah, पे, yeah, I yeah, forgot his surname. हाँ। तो I love वो, हाँ, yeah, सौरभ exactly. जैन। हाँ, सौरभ जैन। So वो वाला महाभारत, I love watching that thing. It's very interesting. So that is the one character which is Draupadi I would like to play. मुझे बहुत differently attract करता है वो character. So yeah, that is something, हाँ, जो हो चुका है, जो तुमने पूछा in that way. एंड यू वॉच लाइक अनुपमा हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज दीज सीरियल्स आर लाइक के टेलीविजन मतलब हर कोई देखता है, उनका टीआरपी तो टॉप पर आता है, और यू गेट इंस्पायर्ड बाय रूपाली गांगुली और एनीवन लाइक दैट, जेनिफर वेंगेट, और हाँ, देयर आर कैरेक्टर्स, जब जैसे अनुपमा जब शुरू हुआ था, अनुपमा रूपाली गांगुली इज अ बंगाली, व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ आई एम बंगाली, शी इज अ बंगाली एक्टर, सॉरी शी इज बंगाली, राइट, बट देन शी इज प्लेइंग अ गुजराती कैरेक्टर, व्हेन आई heard the accent, the way she speaks, I was like, oh my god, this is so amazing. So that is something very inspiring कि you know, मुझे personally मुझे accent को लेके बहुत problem होता था, या अभी भी थोड़ा बहुत होता है, but then the way she is speaking गुजराती, लगता ही नहीं है कि वो गुजराती नहीं है। I think Gujarati people also believe she is Gujarati now. या बिकॉज बंगाली तो कहीं से भी उनका वो लगता ही नहीं so है। that is something very nice and very aspiring, and मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीरियल। हाँ, अगर ऐसे कोई सीरियल में काम करने का मौका मिलेगा, आई वुड लव टू डू इट। आई विल नॉट स्पेसिफाई कि हाँ ये करना है और समथिंग, बट एनीथिंग विच मुझे अगर अच्छा लगे करना, which gives you exposure also. या जो हाँ अच्छा लगेगा अगर करना, तो डेफिनेटली वुड लाइक टू डू। So you told me you did modeling also, so वो fashion का एक वो रहता है ना, craze रहता है, especially in girls, of course in girls only, तो नहीं बॉयज में भी boys में भी होता है, ट्रस्ट मी। yeah, but I guess 5% or 10% of boys, अगर वो रेशियो देखा जाए तो, so that वो मतलब वो कब आया, कॉलेज के डेज में कुछ आप ऐसे शोज वगैरह करते थे, या फिर पहले से ही था, बचपन से ही था? मैं कलकत्ता में भवानीपुर कॉलेज में पढ़ी हूँ, और भवानीपुर कॉलेज फैशन के लिए ही फेमस है। ओके। सो Bipasha Basu is from Bhawanipur College. Selina Jetli is from Bhawanipur College. All the actresses, if you see, even in Calcutta also, there is a actor called Nusrat Jahan. She is also from Bhawanipur College. So Bhawanipur College is the वही अड्डा था हमारा, वही का। तो कॉलेज से मॉडलिंग स्टार्ट हुआ with the college shows and everything. But then suddenly we got to know that Miss India audition is happening. And then we were like, let's go, like just वो बोलते ना मुँह उठा के जाना, एक्चुअली मैं मुँह उठा के गई थी,
इनफैक्ट माई इंट्रोडक्शन स्पीच वॉज ऑल्सो नॉट रेडी बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता भी है. So that's how it started, and then that thing happened. Then I got calls from few professional shows, and then I realized, oh, I'm getting money also. I didn't even know. It just happened, and then I started liking it, and then nice, which I wanted to do it. I never knew maybe. So that's how it started. Just happened. कॉलेज से यू स्टार्टेड लाइक वो फैशन ही वो था, तो फिर घर पर फैमिली वगैरह दे वर फाइन विद दैट के ओके इफ यू गो नहीं, टू पहले- मुंबई आल्सो? पहले पहले तो पता ही नहीं था ना. पता ही नहीं था, तो सब पहले- चुपके से हो रहा था. हाँ देखो, मैं एक्चुअली मैं कोच बिहार से हूँ. कोच बिहार इज अ स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल. ओके. मैं पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन के लिए कलकत्ता आई थी. सो आई वाज लिविंग इन अ पीजी. यहाँ पे क्या कर रही हूँ पता नहीं होता था. बट येस, कॉलेज शोज के बारे में पता नहीं होता था. जब मिस इंडिया हैपेंड नो, तो वो पेपर वेपर में जब आ गया तब तो बोलना ही था. मतलब ऑब्वियसली सिलेक्शन के बाद ही बोला था. बट मतलब फिर एक्चुअली देन इट वाज नाइस. शोज वोज करते थे इतने अच्छे. देयर वाज नो ऐसा कोई शो नहीं है जो मैंने कैलकाटा में किया नहीं है फॉर गुड डिज़ाइनर्स और एनी फैशन वीक. सो पेपर वेपर में पिक्चर आता था, मैगजीन में पिक्चर आता था, तो फैमिली देखती थी. फैमिली देखते थे. आई वाज लाइक आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग गुड. ऐसा आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो इन दैट वे ना भी नहीं था. और बट पढ़ लो, कर लो थोड़ा सा कुछ और, ये था. बट पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ज्यादा सही हाँ, है. वो तो डेफिनेटली मतलब मना नहीं करते थे बिकॉज एनीवे आई वाज इन कॉलेज. ठीक है, तो उनको लगता था मैं पॉकेट मनी के लिए कर रही हूँ और समथिंग इट्स लाइक मुझे अच्छा लग रहा है कर रही हूँ. बट पापा इज लाइक ठीक है, उसके बाद पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो. एमबीए भी ज्वाइन किया था बट मतलब ये सब तो करते रहो, लेकिन पढ़ाई करनी है. नो नो, दैट इज तो वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. एंड वो उसको छोड़ के इफ आई एम नॉट स्टडिंग देन कलकत्ता रहूंगी कैसे? Yeah. मुझे वैसे भी पढ़ना था. देन हाउ डिड यू कम अप लाइक मुंबई कैसे आना हुआ? while doing shows ना, हाँ. doing different fashion weeks, तो हम लोग different जगह पे जाते थे. बॉम्बे फैशन वीक हो गया या बैंगलोर हो गया या whatever, दिल्ली हो गया. तब अमेजोन फैशन वीक बोल के भी कुछ होता था. तो डिफरेंट जगह मैं वैसे भी जाती थी एज अ मॉडल, डूइंग शोज एंड एवरीथिंग फॉर शूट्स के लिए. आउट स्टेशन यू गो फॉर शूट्स, राइट? दैट्स व्हाई मुझे बचपन से ही पता था मुझे बॉम्बे जाना है. कैसे क्यों आई डिडंट नो, बट मुझे जाना है, इतना मुझे पता था. ठीक है. एंड माई मॉम ऑल्सो न्यू इट कि आई एम गोना गो देयर समहाउ. किस लिए मुझे नहीं पता. बट देन सडनली काम करते करते ना ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे भी कुछ ऑडिशन दे रही हूँ. सो मैं वहाँ यहाँ पे एक पीजी में रहती थी. वहाँ पे मेरा एक फ्लैट था, तो मैं यहाँ पे आती थी, ऑडिशन देती थी, वहाँ जाती थी, काम करती थी. आई यूज्ड टू अर्न देयर, आई यूज्ड टू स्पेंड हियर. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन जब बॉम्बे में काम मिलना शुरू हो गया तब से मतलब मोर और लेस ऑलमोस्ट 9-10 years आई एम हियर. देन हाँ, मुझे लगा था कि चलो है कर लेंगे. हो जाएगा. हो जाएगा, But मिल 10 रहा है. years, हाँ मतलब इट्स लाइक नाउ तो इट्स योर होम ओनली. Yeah, it तो is now. बहुत- And then I have an NGO here, so it is my home now. Yes. Coming to your NGO also, you are a like pet lover. Oh, I'm. Love animals, right? I love animals. So tell me more about your NGO, no? कि क्या है उसमें? So basically, lockdown से this started. थोड़ा रेस्क्यू करना ये वो, तो थोड़ा करते करते ज़्यादा होने लगा. देन 2023 तक आई वॉज डूइंग टीवी. लॉकडाउन से लेके 23 आई डिड लाइक 5 टीवी शोज, 1-2-3 महीने के गैप में. 23 के बाद ये रेस्क्यू वाला इट्स लाइक अ ड्रग, यू नो. व्हेन यू स्टार्ट सेविंग समबडीज लाइफ, इट्स लाइक अ ड्रग. सो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे लगा था नाउ हो गया, थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं. देन NGO मड में देखा द कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड ऑफ द एनिमल्स. सो दैट्स हाउ दिस थिंग स्टार्टेड. पहले खुद से ही करती थी, खुद के पॉकेट मतलब खुद के ही पैसे से एंड ऑल. बट देन जब काम बढ़ते जाता है तो इतना नहीं हो रहा था. देन आई वाज लाइक NGO रजिस्टर करते हैं एंड सी हाउ थिंग्स हैपन्स. डोनेशन आता है कि नहीं, लेट्स सी. बट ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं समथिंग. एंड देन मतलब आफ्टर दैट देन दिस थिंग स्टार्टेड कि फाउंडेशन रजिस्टर किया और काम शुरू हुआ. तो काम ज़्यादा लेवल पे. नाउ आई टेक केयर ऑफ एटलीस्ट 200 डॉग्स एंड कैट्स ऑन रोड. 200, oh my god. एंड
Myself, I have 19 dogs and 6 cats at home. So in that way, that's how it started. But I love doing this. Yeah. दैट्स सो गुड क्योंकि पीपल लाइक दिस एग्जिस्ट लाइक कंपैरेटिवली अभी बहुत कम लोग हैं बट लोग जैसे डॉग्स वगैरह रहते हैं जैसे मैं भी देखती हूँ तो रोड पर अगर कुछ भी उनको लग जाती है और रह जाए तो फर्स्ट थिंग आई जस्ट गूगल एंड देन जो भी मुझे नंबर मिलता है नियर बाय एंड देन आई कॉल देम अप तो वो यहाँ की मुंबई की भी बहुत अच्छी मतलब जितने भी NGOs हैं सब हैं Luckily, it's very Mumbai good. is good. Yeah. When you go to outskirt, even Bombay के भी outskirt में जाते हो या Yeah. छोटे छोटे जगहों पे जाते हो, those places are not that good, but luckily Bombay is good. Yeah. Yeah, people are taking care of Yeah. animals around them. Yeah. Recently, I saw this video also where there was this pet owner जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. You've Oh seen it? God, that was pathetic. Oh my God, like oh, I understood what you were हाँ, saying. No, वो ट्रेन I के was नीचे like, आ गया I dog know that एकदम से. luckily, thankfully, the Yeah. dog is fine. But yeah. बिकॉज क्या रहता है ना उसमें ओनर की भी कोई गलती नहीं थी ही वॉज जस्ट वो बीच में जैसे ट्रेन ब्रेक लेती है हॉल्ट लेती है तो वो उसको नीचे ले गया होगा जिस घुमाने के लिए एंड उसी टाइम बोल देखिए वो It's चढ़ती like, I ट्रेन में think वो a चढ़ा रहा है new- उसको New owner or dog parenting or any kind of animal parenting also one kind of parenting, right? Before आजकल जैसे होते हैं ना कि parenting के book पढ़ते हैं. So Yeah. before also you adopt someone, Yeah. any pet. You need to also learn few things about them or their behavior and how to खुद के बच्चे के लिए जैसे माँ बनना is something like that. That is Yeah. also something how to become a dog mom or a cat Yeah, mom. You need to because learn about all it's like this. a own baby like yeah. वैसा So in है. that way, I think people also before they adopt us, and then I used to handle adoption in all over India. So I have my babies, rescued babies, in different places in Delhi, in Goa, in Ahmedabad, in Calcutta, in Bangalore, in Chennai. So I have rescued and I have done adoption in different cities in India. So in that way, that I have a PDF sort of जहाँ पे मैं पहले भेजती हूँ. This is the parenting book. Learn it and then tell me you want to go ahead or not. Yeah. बट अगर कभी आपको बाहर जाना हो तो कैसे छोड़ मतलब किस पे छोड़ केयरटेकर है यहाँ पे तो केयरटेकर है ऑब्वियसली केयरटेकर बट यू मस्ट बी लाइक कैमरास लगे हुए हैं घर के हर जगह याद आती होगी caretaker है. सबकी डॉग्स बिकॉज वही होता है ना that's how Bombay become more home to me because now पहले होता था ना घर जा रहे हैं बॉम्बे से. अब ऐसा होता है घर जाती हूँ तो घर में वापस भी आती हूँ यहाँ पे. इट्स लाइक अ होम एज वेल बिकॉज बच्चे हैं. I'm a mother of and not only my own kids, like I told you that I take care of at least 200 dogs and cats on road, so they are also dependent. So I'm a mother of so many babies, so yeah, I have to come back So here. you have dogs and cats. I have dogs and cats. I have rescued goats also, along with my friend. तो मेरा एक फ्रेंड है शुभम. रिसेंटली मेरा एक म्यूजिक वीडियो आया था बेजुबान. तो वो बेजुबान बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था मतलब अभी भी शायद चल रहा है एनिमल्स के ऊपर. सो हम लोग एक शूट कर रहे थे. शुभम वाज माय डायरेक्टर. सो व्हाइल शूटिंग विद द गोट्स एंड आई वाज लाइक कि ये क्या होने वाला है इनका. सो देन वी रियलाइज कि थोड़ा फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है. तो मैंने कहा चलो फिर दोनों के साथ देखो सबको आई नो ये लिटरली वी बॉट those goats, okay, and the amount was not very कम. It was quite a amount. So मैंने कहा था कि चल दोनों मिलके फिर हम दोनों ने ये किया है कि दोनों को रेस्क्यू करते. तो वो कांगड़ा में हम शूट कर रहे थे. सो दोनों गोट को हम लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू किया था. तो दे आर इन अ फार्म हाउस राइट नाउ इन अ शेल्टर राइट नाउ. I guess you're vegetarian only. I am Pure vegetarian. vegetarian, yeah. मेरा तो ऐसे मन करे ये कैमरे में I'm saying this, but even I'm a vegetarian, so I feel like that अगर कोई वो चिकन वगैरह भी खाते ना, so I feel like कि भाई इनको भी रेस्क्यू कर लो. भगवान करे इतने पैसे हो जाए so that I can rescue. Yeah, because मैं भी मुझे नहीं अच्छा, you are also vegetarian? Yeah, मैं नहीं देख पाती. By choice vegetarian or like? By choice only. Like there
मैं खा सकती हूँ पर मैं नहीं खाती. हाँ That's the अच्छा thing. हाँ by choice vegetarian Yeah, like yeah, yeah. I am by choice vegetarian because Yeah. everybody asks me यार you are Yeah, Bengali यार. फिश एंड वो भी नहीं खाते हो आप? पहले Fish तो खाती थी डेफिनेटली, मतलब खाती थी इन द सेंस यू हैव नो चॉइस, घर पे हाँ, जबरदस्ती खाना हर पड़ता रोज है. वही okay? बनता होगा आई गेस. हाँ तो घर पे हमेशा वो होता ही था. बट देन चिकन छोड़ना या मटन आई नेवर लाइक्ड इट. ओके लिटरली ज़बरदस्ती ऐसा लगता था कि रिचुअल है संडे को वो खाना हमारे घर पे. सो ज़बरदस्ती होता था. बाय चॉइस छोड़ना तो डेफिनेटली बाय चॉइस. आई यूज्ड टू लव एग्स अ लॉट बट देन दैट इज आल्सो बाय चॉइस. सो नाउ प्योर वेज. प्योर वेज यस. बट देन फिर मेरे हिस्से का मेरे बच्चे खाते तो है हाँ, तो ना वो तो ठीक उनको है. सो दैट वे चलो. बिकॉज उनको भी खाना मतलब वो अगर नहीं I खाएंगे तो हेल्दी actually नहीं tried रहेंगे. to make them become vegetarian, but then बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज उनका भी बॉडी अलग है, जो स्पीसीज अलग है. वो बच्चे जो so- एकदम पपी से if the puppy if you have a puppy or kitten, वो शुरू से अगर आप वेज खिलाओगे और विद द प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, हाँ डाइट फॉलो करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल खिला रहे हो, तो शायद वो लोग वेजिटेरियन बन सकते हैं. पर ऑलरेडी जो दोज बेबीज हु नो चिकन क्या है या मटन क्या है, वो जिनको पता है टेस्ट है, वो तो नहीं खाएंगे. नहीं खा So my new babies they eat also dahi rice along with veggies and soybean and everything. They eat dahi rice, but the old ones they don't. No. because they have that habit of eating. हाँ, so that they know the meat. taste now. Non-veg That you only. can change. So coming back to your acting journey, so you were a part of Crime Patrol, Emotional Atyachar also, Adalat. Initially, yes. हाँ, प्यार तूने क्या किया, इश्क में मर जावा. So according to you, which one is your best one? Like initially when I did these episodic serials, Yeah. I realized that episodic serial 3 दिन में या 4 दिन में खत्म करते हैं one episodes. Okay. Yeah. So that time I did all the episodic serials you name it. I think I have done it. Crime Patrol and Savdhan along with my modeling. तब मैं modeling करती थी. Okay, okay. And then I realized कि नहीं यार ये तो नहीं होगा. 4 दिन हर दिन सुबह उठो, हर दिन रात को आओ, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि मैं तब मॉडलिंग करती थी ना, तो मुझे वो आदत थी. वो एक दिन शो कर रही हूँ या whatever, एक दिन का गैप मिल जाएगा, तो तब मुझे ऐसा लगा था नहीं टीवी तो नहीं हो पाएगा, टीवी तो मुझसे नहीं होगा. बट आई वाज टू एंजॉय इट. हाँ, कुछ अलग करने को मिल रहा है. एवरी एपिसोड्स वेर डिफरेंट, क्योंकि कुछ क्राइम था, कुछ रोमांटिक था, अलग स्टोरी अलग था. बेस्ड मुझे होगा. बहुत अच्छा लगता था. पर आई थिंक दैट टाइम आई वाज लेजी एंड थोड़ा उम्र भी कम था ना, इतना नहीं था कि पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, इतना ज़्यादा नहीं था. तब मुझे चिल लाइफ लिव करना था. आई एम अर्निंग मनी, आई एम डूइंग वेरी गुड, I'm buying everything I want. It's okay. I want to chill. So TV मैंने तब किया था, but तब I was not that interested doing television, because ये मुझे बोर होता था कि हर दिन and plus Sunday, Saturday, like continuously, it's like all 7 एपिसोडिक्स में तो फिर भी चार दिन. तब आई रिमेम्बर मैंने 4 दिन शूट किया है पर एपिसोड्स ऐसे करके. But imagine being in a continuity role you're doing in for a serial. Then when it started to 2020 में जब टीवी स्टार्ट किया, then I think मैं खुद भी मच्योर हुई थी, या मुझे भी ऐसा था कि नहीं नया कुछ सीखना है. उस टाइम पे जो नहीं था कि चिल करना है, नहीं करना है, मॉडलिंग करके खुश हूँ. So there was a gap also. I think I also got mature and I also wanted to do something new, and that's how I started liking TV now. That time was different. वो पहले किया था, वो उस टाइम पे उतना शायद मुझे नहीं करना था. But after lockdown, I don't know, maybe बहुत चीज़ें I think सब में चेंज हुआ था. I think I also got mature and I felt like कि हाँ यार it's good experience, and at the same time with along with everything, yeah, it's good money. Yeah. So I think that also with the experience and everything, age and everything, You I get think, to learn by the like हाँ, experiences. so दोनों जैसा experience age बहुत बढ़ता जाएगा, different yeah. है मेरे लिए. Yeah. उस टाइम के episodic serials के experience and कंटिन्यू सीरियल्स अभी के जितने सारे लास्ट सीरियल्स किया है, जो कंटिन्यू वाला सीरियल्स है, दोनों में बहुत डिफरेंस है.
So you are a Kathak trained dancer. Oh yeah. So any plans of getting into any dance reality show? Oh no. Not at all. Somehow Not interested in any reality no, show. somehow reality shows Let's say Big Boss. Oh no. If you get I can't even chance. see big I can't even watch it, you know. You've never watched like कोई भी season No, नहीं देखा? शुरू में शायद देखती थी जो एकदम शुरू में जो you know तो डॉली बिंद्रा और उन सब का जो नहीं वहाँ तक भी नहीं वहाँ पहुँच पे भी पाई नहीं। इट वाज फ्यूरियस तो शुरू में देखती थी जब एकदम शुरू हुआ था आई थिंक द फर्स्ट विनर वाज राहुल बोस हाँ उस टाइम पे अरशद वारसी यूज्ड टू हाँ, होस्ट yeah. पहले के कुछ 3-4 सीजन शायद देखा था पर उसके बाद से पीपल स्टार्टेड फाइटिंग सो मच So you don't like fights at all? Like, नो not नॉट एट into ऑल it. इवन लास्ट 1-2 सीजन में कभी इंस्टा के रील्स में आ जाता है ना इट जैसे- मेक्स मी हाइपर व्हेन आई सी समथिंग लाइक दैट इट मेक्स मी घर बैठे सीइंग ऑल दिस इफ इट कैन मेक्स मी हाइपर देन हाउ विल आई लिव लाइक दैट आई कैन नॉट So basically, I guess Sid Naz वाला season बहुत चला था, सिद्धार्थ मल्होत्रा and शहनाज का, Yeah. where Asim used to fight with हाँ सिद्धार्थ शुक्ला and आसिम रियाज, उनका fight बहुत चलता फाइट था. तो कुछ उससे पहले भी आई रिमेम्बर सम गौहर खान के सीजन में भी एक Oh, फाइट yeah. कुछ एक सीन था देन लास्ट सीजन में भी बहुत फाइट हुआ देन पीपल स्टार्टेड गेटिंग मीन But it's scripted also. You can say like. but in that way हाँ. I think if it's scripted then I don't want to portray myself like that जो खाने के लिए लड़ना चाहेगी I don't want to do that I really don't want to do that I don't want to get fame like that not at all अगर fame like बहुत fame money and no I जो really इतना don't मिलता want है, money yes it's a different thing but then पैसे से भी ज़्यादा फेम भी जितना मिलता है मुझे उस तरीके का I don't want that kind of fame at all not at all अभी IPL is going on right now. So you watch IPL? Not really. Not into cricket at all. I am aware that what IPL is happening. Yeah. कैसे हो रहा है. So मतलब which हो is रहा your है. favorite team? I don't Like have- any team which you like? No. ऐसा I कोई really specific- don't go for teams. I really don't watch cricket. When I was in college, तब तक देखती थी. उसके बाद का वो craze एकदम से चला गया. So there is no craze There's no about specific player you like or anything? Not really, not like that. Virat Kohli. Virat Kohli, I think everybody likes. Inspiration, definitely. Yeah. Even Rohit Sharma is also like Hardik an inspiration. Pandya. Because अगर मैं क्रिकेट देखती भी नहीं हूँ तो बट यू नो नाउअडेज बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया यू स्टार्ट गेटिंग सम न्यूज़ कि कहाँ से इनकी जर्नी Yeah. शुरू हुई एंड कैसे कहाँ से कहाँ आए सो Yes. दोस जर्नीज वर इंस्पायर्ड मतलब इंस्पायरिंग एंड क्रिकेट से तो ज़्यादा आई गेस अब वो डाइवोर्स ट्रेंडिंग हो रहा है बिकॉज दीज ऑल प्लेयर्स आर लाइक इनटू सो मच क्रिकेट से तो ज़्यादा इनका डाइवोर्स फेमस है. I think you know very funny. I got to know Hardik Pandya because of his divorce thing and everything. Like मुझे पता था कि there is a player like- Hardik Pandya, okay. Yeah. But इतना ज़्यादा नहीं पता था कि जितना डाइवोर्स के बाद पता जितना वो चला. रूमर से मुझे पता चला and started मतलब हाँ मुझे पता चला कि ऐसा दिखता है ऐसा दिखने में था अभी ऐसा बन गया है तो या दैट इज तो थैंक्स टू सोशल मीडिया Thanks to his divorce actually. ओ गॉड even अभी recently किसका युजवेंद्र चहल and धनश्री का हुआ है. So I was like मुझे पता ही नहीं था धनश्री कौन है but when they were both together उसके बाद उसको फेम मिला. नहीं व्हेन टुगेदर के बाद जब डिवोर्स हुआ Divorce तब शायद उसके सबको बाद- पता चला उसके बाद एक्चुअली तो हु इज सबको ही शी पता एंड चला. एवरीथिंग या बट देन आई नाउअडेज फ्रैंकली आई फील marriage also has become a festival sort of thing and then divorce is also happening कब शादी हो रही है कभी कभी ऐसा लगता है अच्छा डाइवोर्स हुआ मतलब शादी भी हुआ था क्या इनका मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है ना मैरिज एंड डाइवोर्स इज वेरी इज लाइक इज वेरी इट हैज बिकम वेरी नॉर्मल थिंग सो आई व्हाट कैन आई से आई मीन आई थिंक अब शादी से पहले यार थोड़ा सा सोच के क्या करो ये डाइवोर्स वाइवोर्स नहीं, people being in a relationship for 2 years and they are getting married also 6 months after that they are just getting there divorced. are not और शादी में इतना in खर्चा fact किया. I have friends like that you know जिनके शादी में भी गई हूँ
जिनके डाइवोर्स में भी गई हूँ, Oh. जिनके नेक्स्ट शादी में भी मैंने अटेंड किया है या मतलब नेक्स्ट शादी भी हो गई, दो शादी. या डोंट मतलब can't take their name, but I No, have of course, friends yeah. like that. So yeah, When are you getting married? You tell yours. married? No, I You don't believe in. I don't believe in marriage. At least वो धूमधाम करके तो definitely नहीं. If I get a right person, I would like to stay together. But then it's been so long I'm staying alone. ये अब भी मैं realize करती हूँ. It's been so long I'm staying alone. I think it's for me also it's very difficult to live with someone. So it has to be God, what kind of person God knows. मतलब मुझे झेलना भी थोड़ा तो मुश्किल है बहुत. But I guess you should give tips to all the singles out there because you'll be the right person. Because it's so like people, मैं even like कितना मुश्किल होता है when someone says कि मैं I'm living alone and like जब you get that age when family keeps asking you, वो pressure रहता है, सब रहता है. सो कहीं ना कहीं एक दिमाग में रहता ही है कि ठीक है विल डू बट ऐसा माइंडसेट भी लेना इट्स लाइक फ्यू पीपल हैव इट. नहीं एक टाइम पे ना घर से प्रेशर आ रहा था. माय भाई गॉट मैरिड यार. He is younger. ओके सो एक प्रेशर आ रहा था इन द सेंस कि शादी. देन आई when I see this kind of marriage and divorce and so many things again and again, so I actually genuinely told my mom and dad कि do you want me to get married and divorce or something, or you want me to get married once with the right person. I don't want to do this because of this pressure कि हाँ यार आज ही अच्छे लगे, हाँ प्रेशर में है तो चलो शादी कर लेते हैं. And then I want to know a person. If feel like कि हाँ ठीक है शादी करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो रहेंगे. शादी करके भी टूट जा रहा है, शायद बिना शादी के रह के भी रह ले हम लोग 10-12 साल एक साथ. I don't know. So don't have that kind of thing कि नहीं करना है or something. If I get a right person, then why not? And then if the person has to love my kids, Oh yeah. so it's a very big part of my life. That's the one of the biggest factor which a boy very should big have. part of my life, that the person has to love my kids the way I am. For him also they have to be his kids. And then yeah, अगर right time पे होगा तो होगा. I have ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना नहीं होगा है. तो नहीं होगा. नहीं होगा तो नहीं होगा. नहीं क्या क्या कर सकते हैं. I don't have that kind of thing कि शादी करना है. हाँ थोड़ा वो सजना सवरना मुझे बहुत ये था कि हाँ शादी के जोड़े में सजूंगी एंड ऑल. वो तो हम शूट्स पे भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अब मैं वही आ रही थी, वो तो शूट्स में भी हो गया यार. आई रिमेम्बर कभी कभी इत्तेफाक से व्हेन आई वाज डूइंग कभी कभी इत्तेफाक से ऑलमोस्ट टोटल 12-15 kg पूरा लेके लहंगा एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, दो दुपट्टा, सर पे दुपट्टा, मैं 11 दिन शूट की हूँ वही सेम गारमेंट पे. Oh my God. सो तब उसके बाद मुझे लगा था इट्स ओके, अब तो शादी में भी फिर लेट शादी इट में बी, आई और डोंट कर वांट टू लूंगी. डू इट एनीमोर. सो वो तो आजकल हो ही गया है. वो भी पूरी हो गई है मेरी. Yes. So yeah, tell me that what are the upcoming projects you're working on and where we are seeing you next? I think this April end or May first करके I'll start my new web series. Oh wow. And जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में एक मूवी की स्केड्यूल है. So That's what सब अच्छे से हो and we really wish you all the best for that. And yes, I hope कि आप ऐसी NGO जो भी है, even I'll visit soon there. Please And come. Yeah, I'll come. And any last thing you want to say to all the people out there who are watching this? First of all, keep watching your podcast. That is very important. No, anything related to life, the journey which you like जो हुआ, because I think अभी बीच में you took a break also. I took a break. Yeah. Definitely, I took a break because I was doing Dharampatni and then I had some physical problem. Because of some medical problem, I quit the show and then took a break. And then something happened in my life. That's how these babies came into my life. And then I think I also understand कि काम करना, पैसे कमाना, everything is fine. But there is a purpose in your life. If I want to earn money, then what I want to do, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, everything is fine. But then what
एक खुद को छोड़ के और क्या कर सकते हैं, you know, there is a purpose. I think that in last 2 years I have understood what is the purpose of my life, and then ढूंढो अपने पर्पस यार. अपने छोड़ के भी होता है दुनिया में. There is a purpose. Everybody has a purpose. So search your purpose and love animals. Keep spreading all the love. Yes. I don't know how to do it. It's like this. This? Yeah. Okay. Okay. You watch any Korean series? Not really. But I know, yaar. Like, Yeah, I think I'm doing nicely. Yeah, this is love. It's Korean hard actually, है ना? वही बोलते हैं ना? हाँ, yeah. It's very trending. So yes, it was lovely talking to you, Same here. and I hope that we do this soon. Whenever Yes. you are coming up with all your new projects, so definitely would love इसके to see बाद after my new projects, them. Yes. we will talk. Then, and I guess you should get one of your babies also here. Oh my God! Then you guys will only that Oh, that baby baby very will the focused focus. रहेगा. Yeah. Next time we'll get. Yeah, done. Thank you so much. Thank Riya. you. Thank Thank you. you. Thank you. Hi, I'm Riya Bhattacharjee, and you are watching me on Teletushan.